بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچی جو میری ساس بھی تھیں، ان کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی تازہ ہے۔ غصے سے سرخ، آنکھوں میں نفرت اور ہونٹوں پر وہ جملے جو میرے وجود کو چیرتے چلے گئے تھے۔ جا، دفع ہو جا میرے گھر سے، نہ ماں رہی نہ باپ، اب بس مصیبت ہے تو۔ میں بس خاموش کھڑی رہی، کچھ نہیں کہا، کیونکہ کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ خالی تھے، زبان بند، اور آنکھوں میں نہ آنسو بچے تھے نہ امید۔ میں دروازے سے نکلی تو صرف جسم نہیں نکلا، میرے اندر کی وہ بچی بھی نکل گئی جو ہر رات ماں کے خواب دیکھ کر سوتی تھی۔ پاؤں زخمی تھے، روح جیسے خاموشی سے چیخ رہی تھی۔ ایک پرانی چادر تھی جسے چچی نے صدقے کی نیت سے دیا تھا، وہ بھی شاید اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ننگی نکال دیا۔ سارا دن گلیوں میں گھومتی رہی، کوئی جان پہچان والا چہرہ نظر نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو نظر چرا لی۔ شام ہونے لگی، آسمان کی نیلاہٹ گہری سیاہی میں بدل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر رنگ میرے اندر سے بھی نکل گیا ہو۔ میں نے خود کو سڑک کے کنارے ایک موٹے درخت کے نیچے گرا دیا۔ نہ ہمت تھی نہ راستہ، زمین سخت تھی مگر میرے دل سے نہ۔ آنکھیں بند کی تو ایک لمحے کو لگا جیسے بچے میرے پاس آ گئے ہیں، میری گود میں، مسکراتے چہچہاتے۔ میں نے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیری، وہ ہنسے، پھر ایک زوردار گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور خواب ٹوٹ گیا۔ اندھیرے نے پورے آسمان کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اب بھی درخت کے نیچے لیٹی تھی، خالی نظروں سے رات کو دیکھتی ہوں۔ تبھی ایک آہٹ سنائی دی، ہلکی سی، جیسے کوئی دبے قدم چل رہا ہو۔ میں سہم گئی، دل نے سینے میں زور سے دھڑکنا شروع کیا، میرے ہاتھ چادر کے اندر سمٹ گئے، قدموں کی چاک قریب آتی گئی۔ مجھے لگا بس سب کچھ ہونے والا ہے، شاید کوئی اجنبی، شاید کوئی درندہ۔ پھر اچانک کسی نے مجھے بہت نرمی سے باہوں میں اٹھا لیا۔ میں گھبرا کر چیخنے والی تھی کہ اس نے بہت ہلکے لہجے میں کہا، مت ڈرو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں عجب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بھروسہ اس میں چھپا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی باہوں میں سمٹی رہی، جیسے کوئی تھکی ہوئی روح کسی سائے کے سہارے پناہ میں آ گئی ہو۔ کون ہو تم؟ میرے ہونٹوں سے سوال نکلا، ہچکچاتا ہوا، ڈرا ہوا۔ وہ نرمی سے مسکرایا، بس ایک راہی، تو ہی تکلیف سے بچانے والا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیا، شاید دھند تھی یا شاید میری آنکھوں میں نمی۔ اس نے مجھے پرانی جیپ میں بٹھایا، سیٹ نرم تھی لیکن میرے وجود میں اب بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جیپ کچھ دیر بعد ایک سنسان راستے پر رکی اور پھر ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ یہ جگہ کسی چھوٹے سے پرانے بنگلے جیسی تھی، باہر ایک چھوٹا سا لان اور اندر ایک صاف ستھرا کمرہ۔ مجھے لے جا کر اس نے ایک بستر پر بٹھایا۔ یہاں تم محفوظ ہو، اس نے کہا اور پھر چولہے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلنے لگی، جیسے لبان جلایا گیا ہو۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی مگر نیند کا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا، ایک کپ میں دودھ لیا۔ یہ پی لو، تمہیں آرام آئے گا۔ میں نے کپ تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے رکی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ کیا نام سے فرق پڑتا ہے؟ اس نے پل بھر کو رک کر کہا، لیکن اگر جاننا ضروری ہے تو میرا نام جنزادہ ہے۔ میں چونک گئی، یہ نام کہیں سنا ہوا سا لگا، جیسے کسی پرانی کہانی میں۔ میں نے سوال نہ کیا، بس دودھ کا گھونٹ لیا۔ گرم تھا، نرم، اور اس میں شاید وہی چیز ملی ہوئی تھی جو مجھے برسوں سے نصیب نہ ہوئی، خیال۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی، باہر کسی پرندے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ جنزادہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور مجھے لگا وہ نیند میں نہیں، میرے بیدار خوابوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن دل جاگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے اجنبی ہو، پھر بھی بچا لیا، کیوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، کیونکہ کسی وقت میں بھی بے سہارا تھا اور کوئی نہ تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگا جسے وقت خود مجھ سے حساب مانگ رہا ہو۔ میں چپ ہو گئی، لفظ نہیں تھے، بس دل کی سطح پر کچھ قطرے ٹپکنے لگے۔ وہ رات میں نے اس بنگلے میں گزاری، نہ کسی خوف نے چھوا، نہ کسی آواز نے ڈرایا۔ میں نے برسوں بعد وہ نیند لی جس میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک محافظ تھا جس کا چہرہ دھند میں چھپا تھا، مگر اس کی موجودگی میرے لیے روشنی بن چکی تھی، اور وہ روشنی آنے والے دنوں میں میری زندگی کا واحد چراغ بننے والی تھی۔
मेरा नाम जन्नत है, लेकिन मेरे नाम जैसा कुछ भी मेरी ज़िंदगी में नहीं। मैंने हमेशा सोचा शायद माँ ने दुआ माँग कर ये नाम रखा होगा कि मैं सुकून पाऊँ, खुश रहूँ। मगर वक़्त ने हर कदम पर मेरा नाम मुझसे छीनने की कोशिश की। 2 साल की थी जब मेरे बाप का झगड़ा चरवाहे से हुआ। वो झगड़ा नहीं था, वो फैसला था मेरी पूरी ज़िंदगी का। बस एक घंटी थी जो एक भेड़ के गले से उतरी और बात इतनी बढ़ी कि मेरे बाप ने रात को वापसी का रास्ता न देखा। लोगों ने कुछ कहा, माँ ने सुना और मैंने आँखों में हमेशा के लिए एक सवाल रख लिया, मैं क्यों यतीम हुई? चाचा ने परवरिश की, उसने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया, मगर मोहब्बत वो शायद उसे आती ही नहीं थी। मैं हर दिन एक नौकरी थी, एक फ़र्ज़, एक बोझ, घर में काम करती, बाहर के जानवरों को देखती और जब पढ़ने की ज़िद करती तो कहता, बेटियाँ किताबें नहीं पढ़ती, किस्मत चुपचाप झेलती है। मैं बड़ी हुई तो सोचा शायद शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन मेरे बदले में जो मिला वो भी एक सौदा था। गाँव के दूसरे किनारे से रिश्ता है, 2 बैल और 15 भेड़ों के बदले। चाचा ने कहा, बहुत बड़ी बात है जन्नत, गयूर तुम्हें इज्जत देगा। गयूर मेरा शौहर बना, वो मेरे चचा का बेटा था, मजबूत बाजू, खामोश आँखें और ज़ुबान पर हमेशा तलख़ी। वो कम बोलता था और जब बोलता दिल में कांटे चुभ जाता। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी माँ मर गई और मुझे किसी ने बताया नहीं। जब खबर मिली मैं बावर्ची खाने में रोटी बेल रही थी और हाथों में आटा जमने से पहले आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल में 2 बच्चे हुए, वही मेरी दुनिया बन गई। उनकी हंसी में मेरा दिल जीता था और उनकी नींद में मेरा सुकून बसा था। मैंने हर सख्ती, हर खामोशी, हर मार बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि मेरी गोद में वो 2 जिस्म थे जिनकी सांस मेरे दिल की धड़कन थी। फिर एक दिन खमीस आया, वो दूर का रिश्तेदार था, लेकिन उसकी नज़रें करीबी नहीं, अंदर घुसने वाली थी। उस दिन मैंने बच्चों को सुलाकर बावर्ची खाने में काम मुकम्मल किया। खमीस आया चुपचाप और मेरे करीब आकर बोला, तन्हा दिल नहीं घबराता? मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों ने मेरे बाजू को पकड़ लिया। मैंने जोर से धक्का दिया, चीखी, मगर उस वक्त घर में गयूर नहीं था। मेरी चीख सुनकर दरवाजे के पास से एक पुराना हमसाया गुजर रहा था। वो लपक कर अंदर आया, खमीस को धक्का दिया और खमीस चुपचाप भाग गया। गयूर रात को आया, मैंने सच बताया, हर बात, एक एक लम्हा, लेकिन उसकी आंखों में शक की रोशनी थी। उसने मुझे सुना मगर यकीन न किया। उसे सच्ची ने कुछ और दास्तान सुनाई। उसने मेरी कलाई पकड़ कर कहा, अगर तुम सच्ची होती तो वो घर में घुसने की हिम्मत न करती। फिर मार शुरू हुई, ताने, इल्ज़ाम, खामोश मुआवजा और फिर आखिरी फैसला। चची ने सुनाया, निकल जा इस घर से, तेरी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। मैंने चीख चीख कर बच्चों की कसम खाई, मगर उसने कहा, तुम इनके काबिल नहीं रही। वही रात थी जब मैं भागते भागते थक गई। जब रास्ते खत्म हो गए, जिस्म हारने लगा और रूह थक गई, मैं दरख्त के नीचे बैठ गई, आंखें बंद की और अगले लम्हे एक साया मेरे सामने आया। वही जिन्नज़ादा जिसने मुझे ज़मीन से उठाया और आसमान की तरफ ले गया। मैंने उसे हैरत से देखा, उसका लफ्ज़ नर्म था, उसकी आंखें संभालने वाली। वो कहता, सो जाओ, तुम थक गई हो। और मैं सोचती, क्या वो इंसान है या कुछ और? सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। मैं एक पुरानी वीरान कोठी के बरामदे में लेटी थी। पथरीले फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा हुआ था और मेरे ऊपर वही चादर रखी थी जिसमें मैं लिपटी रात भर सोई थी। मेरे पहलू में चपाती और दूध का मिट्टी का प्याला रखा हुआ था। मैंने उठकर इर्द-गिर्द देखा, कोठी सुनसान थी, खिड़कियां टूटी हुई, दर-ओ-दीवार खामोश और 2 दरख्तों के पीछे सूरज हल्के हल्के चमक रहा था। मेरे दिल में एक साथ खौफ और शुक्र का जज्बा उभरा। कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आया? रातों दिन ज़्यादा मुझे अपने बंगले में ले आया था। फिर ये कोठी, ये भी उसी की जगह थी। मैं कुछ भी समझ न पाई, मगर इतना जान गई थी कि कोई ऐसा है जो मुझे देख रहा है, मगर सामने नहीं आता। मैंने रोटी के छोटे छोटे नवाले बनाकर दूध में डुबोई और खा ली। कई दिनों बाद पेट को एहसास हुआ कि किसी ने इसका ध्यान रखा है। मैंने चादर समेट कर खुतबा दर्ज की और बरामदे के सतून से टेक लगाकर बैठ गई। सूरज आहिस्ता आहिस्ता छत पर चढ़ने लगा, पर कोई नजर नहीं आया। कोठी की खामोशी मुझे निगलने लगी थी, पर उसमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। शाम होते ही हवा का रंग बदलने लगा,
मैं वहीं बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। दिल बेवजह मुतमईन था, जैसे पता हो कि कोई आने वाला है। और वो आया। कोठी के पिछले दरवाजे से वो चुपचाप दाखिल हुआ। लंबा कद, धीमा कदम और चेहरा हमेशा की तरह धुंध में छुपा हुआ। उसने एक छोटा सा थैला मेरे सामने रखा। उसमें एक साफ चादर, 2 मरहम की शीशियाँ और एक छोटा सा आईना था। ये तुम्हारे जख्मों के लिए है, उसने आहिस्ते से कहा। ये जिस्म के लिए भी और दिल के लिए भी। मैंने नजरें झुकाई। वो मेरे पास बैठा, मेरे हाथों पर नजर दौड़ाई, जिन पर पुराने मील अब भी बाकी थे। उसने बगैर कुछ कहे मरहम खोला और रुई से आहिस्ता आहिस्ता लगाने लगा। मैंने तकलीफ महसूस की, लेकिन होठों को बंद रखा। वो भी कुछ न बोला, बस धीमा पुरसुकून। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। वहाँ तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने टूटे हुए लहजे में पूछा। उन्हें तुमसे ज्यादा किसी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम जिंदा रहोगी तभी कुछ कर सकोगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कैसी रोशनी थी जो दिल को जख्म देती, जख्म भरने का हौसला देती है। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन हो तुम? वो हंस पड़ा, हल्का सा, जैसे हवा ने कोई राज सुन लिया। बस एक साया हूँ जो तुम्हारा दर्द समझता है। उस जवाब में कुछ भी वाज़ेह न था, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे मुतमईन कर दिया। मैं खामोश हो गई, क्योंकि उस वक्त उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए सब कुछ थी। अगले कई दिन वो हर शाम आता, कभी मरहम देकर, कभी खाना, कभी बस खामोशी। वो मुझे ज़्यादा बातें नहीं करने देता था। एक दिन जब मैंने ज़्यादा सवालात किए, उसने नरमी से कहा, सवाल से ज़्यादा तुम्हें अब सुकून की ज़रूरत है। जन्नत, तुम एक जंग से होकर आए हो, अब खुद को जीने की इजाज़त दो। मैंने पहली बार अपनी हंसी सुनी, वो हंसी जो वैसे पहले हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे जख्मों को छुएगा और वो तकलीफ नहीं देगा। वो कुछ न बोला, बस बैठा रहा। उसने हमेशा मेरे करीब होने के बावजूद कभी हाथ पार नहीं की। उसका हर लफ्ज़, हर बात एक मुहाफ़िज़ की तरह थी। मैंने कई बार कोशिश की कि उसका चेहरा मुकम्मल देख सकूं, लेकिन धुन हर बार बीच में आ जाती, जैसे खुद वक्त ने उसे छुपा रखा। एक दिन मैंने उसे एक छोटा सा पत्थर लेते देखा, जिस पर कुछ बुलंदा था। उसने वो मुझे थमाया और बोला, ये तुम्हारे लिए है। इस पर वो लफ्ज़ लिखा जो तुम भूल गई, कीमत। तुम में कीमत नहीं हो जन्नत। मैंने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और दिल के अंदर कुछ नरम हो गया, जैसे कोई पुराना दर्द अब धीरे धीरे धुन में तहलील हो रहा हो। कोठी में कई दिन गुजर चुके थे। कमरा मेरा लगने लगा था। दीवारों की वीरानी में भी मायूसी से आ गई थी। मैंने कोने में साफ चादर बिछाई थी। एक पुराना संदूक खोलकर उसमें अपनी चंद चीजें रख ली थी। हर रात जब ज़्यादा आता, कभी खामोश बैठता, कभी कुछ पुराना सुनाता, लेकिन वो रात वो कुछ और ही थी। सूरज ढलने के बाद बारिश हुई थी, छत से बूंदें गिर रही थी और कमरे में हल्की नमी भर गई थी। मैंने खुद को चादर में लपेटा और लेट गई। नींद आंखों में थी, लेकिन दिल बहुत भारी लग रहा था। मैंने कई दिन से बच्चों का कोई सुराग न पाया था, न उनकी आवाज़, न उनकी हंसी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मेरे ख्वाब जाग रहे थे। मैंने ख्वाब में देखा, मेरे दोनों बच्चे पहाड़ी के नीचे खड़े हैं। छोटा बेटा रो रहा है और बड़ी बेटी हाथ बढ़ाकर मुझे पुकार रही है। मैं आगे बढ़ी, लेकिन मेरे कदम जमीन से जकड़े हुए थे। मैं चीखना चाहा, रुको, माँ आ रही है, मगर जुबान बंद हो गई। फिर दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, अम्मी, हमें ले जाओ, हमें तुमसे डर लगता है। मैं चीख कर उठ बैठी, बदन पसीने में भीगा हुआ था, दिल की धड़कन तेज, सांसें उखड़ी। कमरे में अंधेरा सा था, मगर वो वही था, मेरे पास दीवार के साथ टेक लगाए बैठा, आंखों में वही गहराई, जैसे मेरे ख्वाब का मंजर उसने भी देखा हो। मैंने नहीं देखा, मेरी आवाज़ थरा रही थी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया, जानता हूँ। मैंने कहा, बच्चों के बगैर जीना मौत जैसा है। वो मेरे करीब आया और बहुत नरमी से मेरे सर पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों का लफ्ज़ माथे पर पड़ा, जैसे बोझ हल्का होने लगा। वक्त आने पर वो तुम्हारे पास होंगे। ड्राई पिज्जा चबाओगे तो सेलिब्रेट कैसे कर पाओगे? Why not Pizza Hut? Pizza Hut का नया juicy delicious pizza, toppings marinated in rich Indian sauces, 100% mozzarella. Now buy 1 medium pizza and get 2 slices free. And it's free. पास होंगे।
ये वादा था या दुआ मैं नहीं जानती, लेकिन उस लम्हे मुझे लगा जैसे कोई बूढ़ा आसमान मेरे गिर चादर की तरह फैल गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा, ये सब ख्वाब है ना? मैं बस सोती हूँ और जागती हूँ, सब धुंध है। उसने पलकें झपका, नहीं, तुम जागी हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात के बाद कुछ बदल गया। अब मैं उसका इंतजार सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी के लिए नहीं करती थी, बल्कि उस लम्हे के लिए भी जब वो खामोश बैठा रहता और मैं अंदर से पुरसुकून हो जाती। उसकी खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे उसमें किसी और दुनिया का सच छुपा हो। कई बार रात को मैं थक कर नींद की दहलीज पर जा पहुंचती तो वो मुझे बाजुओं में लेकर बिस्तर पर लिटा देता। वो लम्हे लफ्जों से परे थे, ना उसने कभी हाथ पार की, ना मैंने दीवार खड़ी की। हम दोनों एक खामोश मायने में बंधे हुए थे, जिसमें खुलूस था, एहतराम था और एक ऐसा एहसास जो किसी नाम के बगैर सांस लेता था। एक रात मैंने खुद से पूछा, क्या मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर रही हूँ या किसी और से? वो सवाल मुकम्मल बिना हुआ था कि उसने कहा, मोहब्बत ज़ात से नहीं होती, एहसास से होती है। और तुम्हें जो सुकून मुझसे मिला, वो शायद तुमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मैं चौंक गई, क्या वो मेरे दिल की आवाज़ भी सुन लेता है? उस रात मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसका हाथ गर्म था, मजबूत और बहुत नर्म। उसने मेरा हाथ नहीं हटाया, ना कोई इशारा दिया, बस वही खामोश तस्वीर, जैसे कह रहा हो, जो तुम महसूस करती हो वो मैं भी करता हूँ। अगली सुबह मैं कोठी के पिछवाड़े कपड़े धो रही थी। पत्थरों पर बैठे बैठे मेरा हाथ फिसल गया और कोहनी एक नुकीले किनारे से टकरा गई। खून निकलने लगा, दर्द तेज था। मैंने कपड़ा लपेटा मगर वो बार बार खुल जाता। मैंने चीखने की हिम्मत न की, बस चुपचाप कोने में बैठ गई, आंखों में नमी, दिल में बेबसी। तभी वो आया, जैसे जानता हो, जैसे दूर से महसूस कर चुका हो। उसने एक नजर मेरे जख्म पर डाली और बगैर कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया। मैंने हिचकिचाते हुए इजाजत दी और जैसे उसका हाथ मेरे जख्म पर आया, दर्द गायब हो गया। मैं चौंक गई, वो जख्म जो कुछ लम्हे पहले जल रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने बाजू घुमाया, छुआ और हैरत से उसकी तरफ देखा। ये क्या था? मेरी आवाज़ कांप रही थी और सांस तेज। उसने आंखें झुकाते हुए कहा, बस दुआ कर फिर समझ ले। मैं जानती हूँ वो आम नहीं, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जिसका मैं नाम तो नहीं जानती, मगर दिल से पहचानती हूँ। शाम को मैं कोठी के सहन में बैठी थी। वो सारे वाले दरख्त के नीचे बैठा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम इंसान हो? वो खामोश रहा, बहुत देर खामोश रहा। फिर कहा, कभी सोचा है इंसान साया में फर्क क्या होता है? मैंने निकली में साया रोशनी के साथ होता है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। जब रोशनी पहुंची, तब साया सामने होता है। मैंने कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसका लहजा, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मुझसे कह रहा था कि वो कुछ और है। शायद इंसान से ज्यादा कुछ, शायद दुआ, शायद सजा, या शायद मेरी कहानी में खुदा का एक बेजमा किरदार। एक रात मैंने उसके कदमों में बैठकर कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, माँ, बाप, बच्चे, खुद भी, मगर तुम्हें पाकर शायद मैं खुद को दोबारा हासिल कर रही हूँ। वो देर तक कुछ बोला नहीं, फिर मेरी तरफ झुका और कहा, तुमने कुछ भी नहीं खोया जन्नत, तुमने खुद को बचा लिया, और जिसने खुद को बचा लिया वो सब कुछ दोबारा हासिल कर सकता है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा, एक गहरा राज, एक दूर की रोशनी, एक ऐसा इल्म जो दुनिया के किसी मदरसे में नहीं मिलता। उस रात मैंने खुद को उसके करीब महसूस किया, जैसे हम दोनों एक धागे से बंधे हों, जो नजर नहीं आता लेकिन टूटता भी नहीं। मेरी रातें बदलने लगी थी, मैं अब उसे सिर्फ अपना मुहाफिज नहीं समझती थी, वो मेरे ख्वाबों का दरबार बन चुका था। मैं सोती तो वो दरवाजे पर जागता, मैं जागती तो उसकी खामोशी मुझे अपनी कहानी सुनाती। उस दिन शाम से उसकी बेचैनी मुझे महसूस होने लगी थी। वो ज्यादा देर मेरे सामने नहीं रुका, बार बार बाहर जाकर आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो। मैं कुछ समझ न पाई, लेकिन दिल में एक हल्की सी कपकपी थी। फिर अचानक उसने आकर कहा, चलो हमें यहाँ से जाना है। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके साथ बोली। हम एक पुरानी पथरीली पगडंडी से गुजरे। रास्ते में दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे वक्ती मुहाफिज हो। हवा थमी हुई थी, जैसे सांस रोक रही हो। कोई आवाज न थी सिवाय उसके कदमों की, जो मेरे कदमों से हमेशा 2 कदम आगे चलते।
जैसे वो मेरे रास्ते साफ कर रहा हो। कई घंटे बाद हम एक पुरानी दरगाह पर पहुंचे। वो पहाड़ी के दामन में छुपी हुई थी और उसकी छत आधी गिरी हुई थी। दरवाजे के दोनों तरफ रंगालू चिराग थे, जिनमें मध्यम से रोशनी थी, न मुकम्मल रोशनी न मुकम्मल अंधेरा। एक ऐसा मकाम जो वक्त से अलग मालूम होता था। वो आहिस्ता से बोला, ये जगह तुम्हें छुपाएगी, यहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर रोशनी के टुकड़े झलक रहे थे। उसका वजूद एक मर्तबा फिर मुझसे छुपने लगा था, जैसे कुछ बताने से पहले वो खुद में सिमट रहा हो। मैंने खामोशी तोड़ी। क्या तुमने कभी किसी को चाहा है? वो पल भर के लिए रुक गए। उसकी आंखों में कुछ लहराया था, जैसे याद का कोई भंवर हो। वो खामोश रहा, कुछ लम्हे जैसे किसी और वक्त में गुम हो गया हो। मैंने दिल कड़ा किया, तुम इंसान नहीं हो, है ना? इस बार वो मेरी तरफ मुड़ा और धीरे से सर हिलाया। ना मुकम्मल इंसान, ना मुकम्मल जिन, मैं जिनज़ादा हूँ, जन्नत। मेरी सांस रुक गई, दिल जैसे सीने में जमने लगा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मुझे खौफ नहीं आया। मैं चौंकी ज़रूर मगर भागी नहीं। मैं सिर्फ उसे देखती रही। उसके बाद कुछ लम्हे ऐसे थे जैसे वक्त थम गया हो। मैंने अपने दिल से एक सवाल किया, क्या जिसने मुझे बचाया वो मुझसे दूर है? मेरे सवाल का जवाब उसने नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने दे दिया। उसकी आंखों में वही खामोश चाहत थी जो लफ्ज़ों से बालातर थी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अगर तुम जिनज़ादे हो तो भी मेरे अपने हो। पहली बार उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी आंखों में देखा। तो फिर तुम मेरे लिए वो हो जो रोशनी अंधेरे मिलाती है। दरगाह की फ़ज़ा ने इस लम्हे हमें अपने हिसाब में ले लिया। वो पुराना गुंबद जो खस्ता हाल हो चुका था, जैसे हमारे सरों पर दुआ बनकर झलक रहा। हम खामोश बैठे रहे, एक दूसरे के करीब, लेकिन बहुत कुछ कहे बगैर। अगली सुबह मैं दरगाह के अहाते में झाड़ू लगा रही थी। पुरानी कब्रें थी जिन पर बरसों से कोई आया न था। मैंने कब्र पर फूल रखी। जिनज़ादा मेरे पास आया और बोला, ये बुज़ुर्ग तुम जैसे मुसाफिरों की हिफाजत करते हैं। क्या तुमने इनसे दुआ मांगी थी मेरे लिए? मैंने पूछा। नहीं, मैंने वादा किया था कि अगर तुम सलामत रहो तो मैं हमेशा उनकी खिदमत करूँगा। मैंने पहली बार उसके हाथों में चुभन देखी, शायद वक्त के निशानात, शायद इंसान बनने की कोशिशों के ज़ख्म। हमने दरगाह के एक हुजरे में पनाह ली। रात को मैंने ख्वाब में फिर अपने बच्चों को देखा, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहे थे, वो खामोश थे, जैसे मुझे यकीन दिलाने आए हूँ कि मैं जहाँ हूँ वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह जिनज़ादा ने कहा, आज मैं तुम्हें एक और सच दिखाऊंगा। हम दरगाह के अकबी दरवाजे से निकलकर एक पुरानी सुरंग में दाखिल हुए। वहाँ से रोशनी की एक हल्की सी लकीर नजर आ रही थी। ये वो जगह है जहाँ मैं पहली बार इंसानों के करीब आया था। मैंने उससे पूछा, क्यों आए थे? एक औरत के लिए जिसका चेहरा तुमसे बहुत मिलता है। मैं सुन लगा। उसने आगे बताया, वो भी जख्मों से भरी हुई थी, तन्हा मगर बहुत बहादुर। मैं उसे बचा न सका, लेकिन तुम्हें बचा रहा हूँ, शायद उसी के कफारे में। उस लम्हे मैंने जाना मेरी कहानी उसकी किसी पुरानी याद से जुड़ी है, लेकिन अब वो पुरानी याद में कैद नहीं, मेरे साथ जीने लगा है। रात को हम दोबारा दरगाह के अंदर लौटे। मैंने उसके करीब बैठ कर कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारा साया बनकर रहूँगा, चाहे रोशनी हो या अंधेरा। उस रात मुझे नींद आई, लेकिन ख्वाब नहीं आया, क्योंकि जो सवाल मेरे दिल में था वो उसकी खामोशी ने जवाब दे दिया था। और मैं जान चुकी थी, उसकी खामोशी में चाहत थी, मुहाफ़िज़त थी, और वो सब कुछ जो एक पल को जैसे जीने का हुनर सिखा दे। दरगाह में रहते हुए कई दिन बीत चुके थे। वक्त यहाँ किसी और रफ्तार से चलता था, ना तेज़ ना सुस्त, बस एक ठहरा हुआ सा एहसास। मैंने खुद को ठीक करते करते उसकी खामोशी में पनाह लेती लेती किसी और ही दुनिया में पाया। मगर एक रात ऐसी आई जो मेरे अंदर की दीवारें टूटने लगी। रात के सन्नाटे में मैं एक पुराने चिराग की रोशनी के नीचे बैठी थी। उसके हाथ में सूखे पत्तों की टहनियाँ थीं, जिनसे वो आहिस्ता आहिस्ता सहन साफ कर रहा था। मैंने नज़रें झुकाकर बस एक ही जुमला कहा, मुझे बचपन से तकलीफ ही मिली है। उसने सफाई रोक दी, आहिस्ता से मेरे पास आया और ज़मीन पर बैठ गया। मैंने अपना चेहरा चादर में छुपाया, मगर दिल में छुपी आवाज़ बाहर आना चाहती थी। मैं बहुत छोटी थी जब अब्बू गए, शायद 2 साल की भी नहीं थी। बस इतना याद है कि माँ की गोद में थी और माँ मुझे ज़ोर से सीने से लगा रोती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी खोली।
जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की खोल रही हूँ जहाँ धूल जमी हो। माँ भी ज़्यादा दिन न रही, मुझे चच्ची के हवाले कर दिया गया। वो मुझे पालती नहीं थी, मुझे झेलती थी। हर रोज़ ताने, हर वक्त धक्के। कहती, ये बच्ची किसी दिन हमारी इज्जत ले डूबेगी। जिनज़ादा खामोश रहा, सिर्फ सुन रहा था। उसकी खामोशी ही मेरा हौसला बन गई। जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश करती, वो मेरे हाथ पर झिड़कियाँ रख देती। गुड़िया के बदले गालियाँ, चॉकलेट के बदले कोसे, और मुझे समझाया गया कि ये नसीब है, औरत का नसीब। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज़ में लर्जिश नहीं थी। आज मैं कह रही थी, दिल में नहीं रख रही थी। फिर जवानी आई। चाचा ने मुझे भेड़ों के बदले एक सर्द मिजाज मर्द को सौंप दिया। शादी नहीं थी वो, सौदेबाजी थी। मैंने सोचा शायद यही जिंदगी है। मैं चुप रही, सहती रही। जिनदादा ने मेरा हाथ थामा, जैसे कह रहा हो, बोलती रहो, मैं हूँ। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी इज्जत पे दाग लगा, और वो भी मुझ पर नहीं, मेरे किरदार पर। एक रिश्तेदार ने मेरे साथ जुल्म की कोशिश की। मैं बच गई, लेकिन मेरे शौहर ने यकीन नहीं किया। उसने मुझे मारा, ताने दिए, और आखिरकार मुझे घर से निकाल दिया। मैं रुक गई, सांस लेने के लिए। जिनज़ादा का हाथ अभी भी मेरे हाथ पर था। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में जैसे दुआओं का रस भर रही थी। मैं टूट चुकी थी, मेरी ज़ात बिखर गई थी। हर किसी ने मुझ पर हाथ रखा, लेकिन कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं था। अब मैं मुकम्मल खामोश हो गई। दरगाह के सहन में हवा चल रही थी, चिराग थरथरा रहा था। जिनज़ादा ने मेरी तरफ देखा। आंखों में वही खामोश रोशनी थी जिसमें न सवाल थे न तरस, सिर्फ कबूलियत। उसने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो जन्नत, तुम्हारे जख्म अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। वो अल्फाज मेरे अंदर तक उतर गए। उस रात ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार अपने माजी से बाहर निकल रही हूँ, जैसे मेरी कहानी किसी ने सुनी हो, बगैर रोके, बगैर शक के। मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, लेकिन मैं ये जान गई हूँ कि तुमने मुझे कभी हरासा नहीं किया। तुमने मुझे संभाला है, बगैर किसी कीमत के। उसने कहा, मोहब्बत की कीमत नहीं होती जन्नत, और अगर होती भी है तो वो सिर्फ वक्त और वफादारी होती है। मैंने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसके वजूद में एक अक्स देखा, जैसे मेरी ज़ात उसकी ज़ात के अंदर झलक रही हो। न मुकम्मल इंसान, न मुकम्मल जिन, बस एक जनज़ादा जिसकी खामोशी ने मेरे ज़ख्मों को छुआ और उन्हें बोझ बनने से पहले बांट लिया। हम उस रोज़ सुबह सवेरे निकले थे। जनज़ादा ने कहा था, आज एक नया सफ़र शुरू होगा। दरगाह की मिट्टी से मेरा दामन भर गया था। वहाँ सुकून था, हिफाजत थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी जंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। हम पहाड़ों के नीचे उतर रहे थे, जब अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया, जैसे अचानक कोई नगाहानी खबर देने आया हो। फ़ज़ा में एक अजीब सी लर्ज़िश आई, जैसे दरख्तों ने भी सांस रोक ली हो। जिनदादा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई बढ़ गई थी। तुम्हें फिर वापस जाना होगा, उसने कहा। मेरे कदम ठटक गए। जहाँ जुल्म हुआ? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, मगर अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर अंदर से खौफ सरसराने लगा। वापस जाना उन जख्मों को फिर से देखना था, जिनके निशान मेरे जिस्म से मिट गए थे, मगर रूह पर अभी भी नक्श थे। सफ़र खामोशी से कटा। पहाड़ों के बाद एक वीरान सड़क आई जहाँ कभी मैं अकेली चली थी, ज़ख्मी, बिखरी और बेआसरा। आज वही सड़क मेरे कदमों के नीचे थी, मगर मेरे साथ एक साया था जो रोशनी बन चुका था। जब हम बस्ती के करीब पहुंचे तो मुझे पुराने मनाज़र दिखाई देने लगे। वही दरख्त, वही कुआं, और वही गली जहाँ बच्चों ने खेलते हुए मेरी तरफ पत्थर फेंके थे। मैंने अपने कपड़ों को संभाला, चेहरे को चादर में ढांका, मगर अब मेरे कदम पीछे नहीं हट रहे थे। बस्ती के किनारे पर जैसे ही हम पहुंचे, अचानक कुत्तों का हौल हमारे सामने आ गया। वही कुत्ते जो पहले मेरी तरफ गुर्राए थे, आज फिर सामने खड़े थे। मेरी सांस रुक गई, जिस्म अकड़ने लगा, लेकिन जिनदादा ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी तरफ देखकर कुछ पढ़ा। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर फ़ज़ा में गूंजती थी। लम्हा भर में सब कुत्ते साकत हो गए, उनकी आंखों की वहशत मिट गई, और वो एक एक करके वापस मुड़ने लगे। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में ना कोई तकब्बुर था, ना फ़ख्र, बस सुकून था, जैसे उसने कुछ मामूली किया हो। तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। हमने गली अबूर की, कई दरवाजे बंद हुए, कुछ खिड़कियां खुली, और कुछ नज़रों ने मुझे पहचान लिया। उनकी आंखों में हैरत थी, जैसे वो सोच रहे हों
ये वही जन्नत है। गयूर का दरवाज़ा सामने था, वही दरवाज़ा जहाँ से कभी मैं निकाली गई थी, तानों और लानतों के साथ। आज मैं उसी दरवाजे के सामने खड़ी थी, मगर खाली हाथ नहीं, मेरे साथ मेरा साया था। गयूर दरवाजे पर आया, उसने मुझे देखकर माथे पर बल डाले। वापस क्यों आई हो? उसने सख्ती से पूछा। मैंने नजरें मिलाई पहली बार। कहा, ये मेरी नहीं, बच्चों की लड़ाई है। मैं माँ हूँ और माँ अपनी औलाद के बगैर नहीं जीती। वो हंसा। बच्चों को छोड़ कर गई थी, अब लेने आई हो? मेरा दिल कट गया, मगर मैंने खुद को संभाला। नहीं, मुझे निकाला गया था इल्ज़ाम लगाकर और सवाल किए बगैर। अब मैं सवालों के साथ आई हूँ। गयूर ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जिन ज़्यादा आगे बढ़ा। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई सुर्खी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। मेरा दिल टूटने के करीब था। मैं पत्थर की तरह दरवाजे के बाहर बैठी रही, निगाहें झुकाई, दामन भीगता रहा। मैं खामोशी से वहाँ से उठी, मगर कदम उठ नहीं पा रहे थे। तब जिनज़ादा मेरे करीब आया, एक लम्हे के लिए झुका और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने रोकते हुए कहा, नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे यहीं रहना है, मेरे बच्चे। मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी, उसकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन फैसला भी। यहाँ बैठकर तुम्हारा दिल टूटता रहेगा जन्नत। चलो, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे दर पर दस्तक देगा। हम बस्ती से बाहर निकले, वही सुनसान रास्ते, वही पथरीली राह, लेकिन आज उन पर मेरे कदम न थे। मेरे वजूद को वो उठाए हुए चल रहा था, जैसे मैं उसके लिए बोझ न थी, उसकी जिम्मेदारी थी। मैंने सर उसके कंधे पर रखा और बमुश्किल सवाल किया, क्या मेरे बच्चे कभी मेरे होंगे? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आवाज़ में गहरे अहद की गूंज थी। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम तक ला सकता हूँ। मैंने सर उठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, बस एक बार मुझे मेरी ममता को पुकारने दो। मुझे अपने वजूद से आवाज़ देनी है, शायद वो सुन ले। उसने नरमी से सर हिलाया। मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा, चाहे मुझे अपनी हकीकत कुर्बान करनी पड़े। हम दरगाह की जाने वापस लौटे, लेकिन उस रात वो खिलाफ मामूल बहुत खामोश था। उसने ना कोई बात की, ना कोई सवाल, बस आसमान की तरफ देखता रहा। मैं उसके करीब जाकर बैठी और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या ये खामोशी उसी की थकन है या कुर्बानी की तैयारी? मैंने इसे छुआ, उसका हाथ थामा और होली से पूछा, क्या तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हो या सिर्फ मेरे जख्मों के साथ चलना है? वो मेरी तरफ नहीं मुड़ा, बस आसमान से निगाह लगाकर बंद आंखों से बोला, मैं हूँ तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर ख्वाब में। मैं दम बखुद रह गई। उसकी मौजूदगी, उसके जुमले, सब मेरे अंदर किसी नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहे थे। मैं उसके करीब हूँ, मेरे लबों पर बस एक जुमला है, तुम अब सिर्फ मुहाफिज नहीं रहे, तुम मेरे दुख, मेरी तन्हाई और मेरी खामोशी का वो साया बन चुके हो जो अब रोशनी जैसा लगता है। उसने पहली बार मुझे इतनी देर तक देखा, जैसे उसने मेरी रूह का चेहरा पढ़ा हो। साया बनना आसान नहीं जन्नत, इसमें अपना वजूद भुला देना पड़ता है। तो फिर क्या तुम अपना भुला चुके हो? मैंने पूछा। मैं वो सब भुला चुका हूँ जो मुझे तुमसे दूर रखता है। अब मैं वही हूँ जो तुम्हें तुम्हारे हद तक पहुँचाएगा। रात देर उसने एक नक्शा निकाला जो उसने खुद तैयार किया था, गयूर के घर का, बस्ती के इर्द गिर्द मौजूद लोगों का और उन रास्तों का जो हिफाजत के साथ अंदर तक जा सकते थे। ये सब क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। कल तुम्हें अपने बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, तुम्हें उन तक पहुँचना है, अपनी ममता के साथ, अपने वजूद के साथ। और मैं तुम्हारे साथ की तरह तुम्हारे साथ हूँगा। हमने पूरी रात मंसूबा बनाया। मैं हैरान थी कि जिनज़ादा जो दो जहानों का मुसाफिर है, वो इतनी खामोशी से मेरी माँ होने की जंग में शरीक हो चुका था। कल रात में तुम्हारी ममता के साथ उस दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं उस वक्त अपनी हकीकत सब पर जाहिर कर सकता हूँ। लेकिन जानती हो, उस लम्हे के बाद मैं शायद तुम्हारे साथ ना रह सकूं। मेरे कदम लड़खड़ा गए। क्या मतलब? मेरे असूल, मेरी हकीकत की दुनिया मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं अपना आप जाहिर करके एक इंसान के साथ रहूं। अगर मैंने अपनी ताकत का पर्दा उठाया तो मुझे वापस बुलाया जाएगा उस जहां में जहां तुम नहीं होगी। मेरा दिल टूटा, मगर मैंने सर हिलाया। अगर तुम्हारी कुर्बानी मुझे मेरे बच्चे दे सकती है तो मैं कबूल करती हूँ, लेकिन अगर तुम चले गए तो ये दुनिया भी मुझे छोटी लगेगी। वो हल्के से मुस्कुराया।
तुम्हारे कदमों की छाँव में रहने वाला साया कभी दूर नहीं होता जन्नत। उस लम्हे मुझे लगा मैं किसी इंसान से नहीं, एक दुआ से बात कर रही हूँ। और उस रात मैं सोई नहीं, बस उसके पास बैठी रही, खामोशी से। वो जिनज़ादा जो कभी सिर्फ एक साया था, आज मेरी मोहब्बत, मेरा मुहाफ़िज़ और मेरी जंग का सिपाही बन चुका था। वो साया दुश्मन नहीं रहा था, वो मेरी निजात बन चुका था। उस रात जब हमने बच्चों के करीब पहुँचने का इरादा किया था, अचानक उसने रास्ता बदल दिया। हम बस्ती की तरफ नहीं, पहाड़ों की ओर मुड़ गए। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, उस जंग से पहले तुम्हें मेरी हकीकत की आखिरी परत दिखानी है। हम कई घंटे चलते रहे, पहाड़ों का सीना चीर कर बनी तंग घाटियाँ, खुरदरे चट्टानें और खामोश वादियों का सफ़र मेरे लिए नया और अनोखा था। जिनज़ादा खामोश था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, जैसे उसका दिल किसी फैसले की दहलीज पर खड़ा हो। जब हम एक बुलंद मकाम पर पहुंचे तो वो रुका। मेरे सामने गोल मैदान था, जिसके बीचों बीच एक बड़ी चट्टान थी। चट्टान पर अजीबो गरीब नक्श थे, इंसानों की आंखें, परिंदों के पर, सांपों की लकीर और रोशनी के दारे। ये क्या है? मैंने धीरे से पूछा। उसने गहरी सांस ली। ये वो जगह है जहाँ रोशनी और अंधेरे की जंग लड़ी जाती है। यहाँ फैसले होते हैं, यहाँ से जिन्नों की तारीख बदलती है। मैं कुछ न बोली, खामोशी गहरी हो गई। उसने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, रोशनी हूँ या अंधेरा? मैंने होली से सर हिलाया। हाँ, आज बताओ। वो मेरे सामने आकर बैठ गए, हाथ मेरे हाथ में दिए और आंखों में झांक कर बोले, मैं दरमियान हूँ जन्नत, न मुकम्मल रोशनी न मुकम्मल तारीकी। मुझे इख्तियार दिया गया था और मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमने मुझे रोशनी की तरफ खींच लिया है। मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैं कुछ कह न सकी। तब हवा में हल्की सी गूंज उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 4 पुराने लंबे साए करीब आ रहे थे। उनके लिबास धुन जैसे थे और आंखों में सदियों की थकन। वो जिन्नों के बुजुर्ग थे। उनमें से एक आगे आया और गहरी भारी आवाज में बोला, जिनज़ादे, तुम्हें याद है तुम्हारी कसम? तुमने किसी इंसान से दिल न लगाने की कसम खाई थी। उसने सर झुकाया। मुझे याद है। फिर तुमने ये क्यों किया? क्योंकि मैंने इंसान में वो रोशनी देखी जो हमें हमेशा कमज़ोर करती है और फिर बचा भी लेती है। मैंने जन्नत में वो सब्र देखा जो जिन्नों के पास भी नहीं होता। उसकी ममता, उसकी बर्दाश्त, उसका दुख, वो सब मुझे बदल गया। एक और बुजुर्ग आगे बढ़ा। तुमने इंसान से मोहब्बत की है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं आ गया। कीमत मैं चुकाऊंगी। उसने मुझे बचाया है, मुझे ज़िंदगी दी है। अगर कीमत ये है कि मैं उसके साथ ना रहूं, तो मैं वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं। बुजुर्ग खामोश हो गए। हवा जैसे थम गई। मैंने जिनज़ादे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। मैं चुकाऊंगा, उसने कहा। जो भी कीमत हो मैं दूंगा, लेकिन मैं जन्नत को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ में वही वादा था जो उस रात उसने मेरे बच्चों के लिए किया था और अपने हर लफ्ज़ पर कान रहने वाला था। तब सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसने हमें दोनों को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, बाज़ औक़ात मोहब्बत ऐसी ताकत बन जाती है जो कायदे बदल देती है। उसने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी और नीचे चट्टानों में रोशनी दौड़ गई। हर नक्श जगमगाने लगा। सांप, परिंदे, आँखें सब चमकने लगे। अगर तुम दोनों एक होकर रोशनी की तरफ जाना चाहते हो, तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन एक शर्त है। तुम दोनों को एक दूसरे की दुनिया का बोझ उठाना होगा। तुम जन्नत उसकी हकीकत के साथ जियोगे और तुम जिनज़ादे उसकी दुनिया की आँखें सब चमकने लगे। अगर तुम दोनों एक होकर रोशनी की तरफ जाना चाहते हो, तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन एक शर्त है। तुम दोनों को एक दूसरे की दुनिया का बोझ उठाना होगा। तुम जन्नत उसकी हकीकत के साथ जियोगे और तुम जिनज़ादे उसकी दुनिया की आज़माइशों से गुजरोगे। हमने एक साथ कहा, कबूल है। तब बुजुर्गों ने सर झुका दिया। फ़ज़ा में रोशनी की एक जंजीर बन गई। हमें अपने दायरे में लेने लगे। जिनज़ादा मेरी तरफ मुड़ा। ये फैसला हमें एक कर देगा, लेकिन आसान नहीं होगा। मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम जो भी हो। हवा में खुशबू फैल गई, जैसे सदियों की दुआएं पूरी हो रही हो। जब हम चट्टानों से नीचे उतरे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले की जन्नत में रही। मेरे साथ अब सिर्फ एक साथी नहीं था, एक पूरा जहां था जो मेरे साथ खड़ा था।
हमने वो पुरानी वादियाँ, वो झुकी छतें और वो शोर से भरे रास्ते पीछे छोड़ दिए थे। अब हम एक नई जगह आ गए थे, एक छोटा सा मकान जो दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ था, जैसे फितरत ने खुद उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। वहाँ हवा कुछ नरम थी, परिंदों की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी और सबसे बढ़कर वहाँ सुकून था। जिन दादा ने इस जगह पहले से मुंतखब कर रखी थी। उसने कहा था, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा और बच्चे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं हैरान थी कि वो वाकई बच्चों को वापस ला चुका था। एक शाम जब मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी, अचानक पीछे से किसी ने आकर मेरे घुटनों को पकड़ लिया। अम्मी, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो मेरा बेटा था, वही आंखें, वही हंसी, वही लफ्ज़। मेरे आंसू उसके माथे पर गिरने लगे। पीछे मेरी बेटी भी खड़ी थी, थोड़ा सहम कर, थोड़ा हैरान। मैं दोनों को सीने से लगाकर बस रोती रही। तुम कैसे आए? मैंने बमुश्किल पूछा। जिनज़ादा पास ही दरख्त के साए में खड़ा था, चेहरा हल्की धुंध में ढका हुआ। मैंने वादा किया था जन्नत, और मैं वादे निभाता हूँ। गयूर को समझ नहीं आया कि बच्चे कहाँ चले गए। शायद उसे यही लगा कि वो रिश्तेदार ले गया हो, मगर हम सब कुछ छोड़ आए थे। वो धक्के, वो इल्ज़ाम, वो बेजारी, सब अब मेरे पास सिर्फ मेरी दुनिया थी। मेरे बच्चे और वो जो कभी साया था, अब हकीकत बन चुका था। सुबह की रोशनी जब खिड़की से अंदर आती तो बच्चों की हंसी के साथ जिनज़ादा का चेहरा भी दिखा देता। वो दिन में भी रहता था। उसने कहा था, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा बनना चाहता हूँ। छुप कर नहीं, तुम्हारे साथ रहकर। अगरचे उसका चेहरा अभी भी अक्सर धुंध में छुपा रहता, मगर उसकी आंखें अब वाज़ेह दिखाई देती थी। उनमें वो रोशनी थी जो दिल के अंदर तक उतर जाती। वो बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानियाँ सुनाता, और जब कभी मेरी बेटी डर जाती, वो उसके बालों में उंगलियाँ फेरता और कहता, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा साया तुम्हारे साथ है। मैं देखती और सोचती, क्या वो वाकई जिनज़ादा है? क्योंकि उससे ज़्यादा इंसान मैंने किसी को नहीं पाया। रात को जब सब सो जाते, मैं उसके पहलू में बैठकर दूध में इलायची डालती और वो अपने मखसूस अंदाज में मुझसे कोई पुराना वाक़या पूछता। फिर हम बातें करती जैसे सालों की थकन सिर्फ अल्फाज से उतर रही हो। कभी कभी वो खामोश हो जाता और फिर धीरे से कहता, जन्नत, अगर मैं मुकम्मल इंसान होता, क्या तब भी तो मुझसे इसी तरह मोहब्बत करती? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती थी। तुम अगर रोशनी हो तो चाहे साया हो या जिस्म, तुम मेरे हो। तुम्हें शक्ल की नहीं, दिल की ज़रूरत है, और मेरा दिल तो तुम्हारा हो चुका है। वो मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता, सिर्फ मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ लेता। एक दिन मैंने उसे दरख्त के नीचे कुछ पढ़ते हुए पाया। उसके इर्द गिर्द सब्ज रोशनी की हल्की सी परत थी, जैसे फजा भी उसके साथ सरगोशी कर रही हो। मैं करीब जाकर बैठी और पूछा, क्या कर रही हो? दुआ। उसने कहा कि तुम्हें कभी वो दुख ना मिले जो तुम पहले सह चुकी हो, और अगर मिले तो मैं पहले उसके रास्ते में हो। मेरे दिल में गहरी दुआ उठी उसके लिए। शायद इंसान ना होते हुए भी वो मुझसे ज़्यादा मेरा था। बच्चों को कभी उस पर शक नहीं हुआ। वो बस यही समझते कि अब्बा को कोई बीमारी है, वो हर वक्त नज़र नहीं आते, और जिनज़ादा भी यही चाहता था कि उनकी मासूमियत सलामत रहे। शाम को जब मैं अपनी बेटी की बात करती या बेटी को लोरियाँ देती, वो दूर खड़ा रहता और बस देखता रहता, जैसे हर लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। हमने वहाँ एक छोटा सा बाग भी उगाया। वो कहता था, ये पौधे तुम जैसे हैं, नाजुक मगर जड़ें बहुत गहरी। मैं हंस कर कहती, तो तुम क्या हो? वो कहता, मैं वो मौसम हूँ जो इन पौधों को कभी मरने नहीं देती। और मैं दिल ही दिल में सोचती, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरे हिस्से का साया रोशनी बनकर मेरे कदमों में आ खड़ा हुआ। जिनज़ादा ने मुझे कभी गैर महसूस नहीं होने दिया। वो कभी हुक्म नहीं देता था और सिर्फ मुस्कुराता। कभी रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ समझाने की। एक दिन जब हम दरिया के किनारे बैठे थे, उसने एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर मेरे हाथ में रखा। ये मेरे कबीले की निशानी है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं कहीं दूर हूँ, इसे अपने दिल से लगा लेना। मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँगा, चाहे वक्त कोई भी हो। मैंने वो पत्थर अपनी छाती में रख लिया, जैसे दुआ का हिस्सा हो। ये एक नई जिंदगी थी, छोटी, खामोश, मगर मुकम्मल। ना अदालतें, ना जंगें, ना इल्ज़ाम, सिर्फ एक माँ, उसके बच्चे और एक साया जब उसकी रोशनी बन चुका था। अब जब रात होती है, मैं उसे अपने पहलू में पाती हूँ। हम खामोशी से एक दूसरे की सांस सुनते हैं और ख्वाब नहीं देखते,
क्योंकि हकीकत ही अब ख्वाब से ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैं हूँ, जन्नत, वही जिसे चची ने दरवाजे से निकाला था, जिसे गयूर ने बेयकीन करके बेच दिया, जिसने अपने बच्चों को आसमान की तरफ देखकर पुकारा और जिसे एक नामालूम हाथ ने उठाया, संभाला, समेटा। आज जब मैं आईना देखती हूँ तो अपने चेहरे पर वो ज़ख्म नहीं देखती जो मुझे सालों ने दिए। मैं सिर्फ वो नर्म रोशनी देखती हूँ जो जमज़ादा हर दिन मेरी आंखों में उतारता है। हमारी वो छोटी सी जगह जो दरख्तों के दरमियान है अब एक छोटा सा जहान बन चुकी है। बच्चे रोज़ सुबह मेरे गले लगकर जागते हैं। वो मुझसे सवाल करते हैं, अम्मी जिन्नू चाचू कब आएंगे? और मैं कह देती हूँ, जब सूरज दरख्तों को चूमेगा। वो हंसने लगते हैं और जैसे दिन चमकता है वो उन्हें दिखाई देता है, कभी हल्की रोशनी के साथ, कभी धुंध में, कभी सिर्फ आवाज़ में। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, नीचे से आवाज़ आई, चाय तैयार है और तुम्हें बुलाने के लिए 2 बच्चों ने पूरी चीनी ख़त्म कर दी है। मैं हंस दी, नीचे उतरी और देखा कि वो खुद चाय का कप थामे खड़ा था, बच्चों के साथ। उसने बच्चों को इशारा किया, जाओ अपनी माँ को लाओ, वरना वो फिर कोई पुराना गम याद करके आंखें भर लेगी। मैंने चाय थामी और कहा, ये वो जिंदगी है जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। वो बोला, तुम ख्वाब हो जन्नत, तुम्हें सिर्फ हकीकत ने जगा दी है। घर के अंदर अब सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कभी कोई तूफान आया ही ना हो। मैं खाना पकाती, वो बर्तन धोती, बच्चे कभी दरख्त पर चढ़ते, कभी हमें कहानियाँ सुनाने को कहते। वो कहता, जब तुम्हारी माँ तुम्हें लोरी देती थी तो क्या तुम भी ऐसे ही गोद में मचलती थी? और बेटी हंसते हुए कहती, नहीं अम्मी तो बस हमें लोरी में जिन्नों की बातें सुनाती हैं। एक शाम जब मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी, अचानक उसने आकर मेरा दुपट्टा सर पर रखा। ये मत भूलो कि तुम अब सिर्फ माँ या बीवी नहीं, तुम रोशनी की वारिस हो। उसके लहजे में वो गहराई थी जो दुआ में होती है। मैंने पलट कर उसे देखा और तुम वो हो जिसने रोशनी में साया बनकर मुझे बचा लिया। हम दोनों की मोहब्बत में लफ्ज़ों की ज़रूरत कम हो चुकी थी। वो जानता था कि मेरे खामोश दिन क्या कह रहे हैं और मैं उसकी बेआवाज़ रातों में दिल की धड़कन सुन सकती थी। एक दिन हमने बच्चों को पहाड़ी के पार ले जाकर परिंदे दिखाए, वो छोटे पंखों वाले परिंदे जिन्हें जमज़ादा बचपन में महफूज किया करता था। उसने कहा, ये देखो, ये वो परिंदे हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी बच्चियाँ कहानियाँ सुनाती हैं। बच्चे हैरान हुए और बोले, तो अम्मी भी कहानी वाली परी है? मैंने उस दिन पहली बार खुद को परी समझा, क्योंकि मेरे चारों तरफ वो लोग थे जिन्हें मैं चाहती थी, और एक वो मखलूक जिसने मेरी ज़िंदगी को ख्वाब से बेहतर कर दिया था। रात को जब हम वापस आए तो वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। मैंने कहा, अगर कल ये सब छिन गया तो? उसने कहा, तो मैं फिर वही साया बन जाऊंगा जो तुम्हें हर जगह छाँव में रखेगा। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकले और वो उन्हें अपनी उंगली से पोंछ कर बोला, अब ये आंसू रोशनी की अलामत है, ना कि दर्द की। कभी कभी मैं किचन में मसरूफ़ होती और वो खामोशी से दरवाजे पर खड़ा देखता रहता। मैं कहती, क्या हुआ? तो वो कहता, बस ये देख रहा हूँ कि जो लड़की चची के तानों में जीती थी वो आज अपने घर की रानी बन चुकी है। मैं उसके कंधे पर सर रखकर कहती, ये सब तुमने मुमकिन करा। फिर एक रात जब सब सो चुके थे वो मेरे करीब आया और मेरे हाथ में वही कबीले का चमकता पत्थर रखा जो उसने पहले मुझे दिया था। बोला, ये ले लो, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, हमारी नस्ल की रोशनी। मैंने उस पत्थर को सीने से लगा लिया और कहा, ये मेरा ताज है और तुम मेरी बादशाह हो, ख्वाह तुम साया हो या वजूद। और अब हर रात मैं उसका हाथ थाम कर सोती हूँ। उसका लफ्ज़ ठंडा होता है मगर उसके अल्फाज दिल को गर्म रखते हैं। उसने मुझे दर्द से निकाला, ज़ख्मों को समेटा और मुझे मेरी असल पहचान दी। हाँ, मैं जन्नत हूँ, वही जन्नत जिसे बेचा गया था, जिसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया। मगर आज मैं साया नहीं, रोशनी की वारिस हूँ। और मेरी कहानी वो सिर्फ आंसुओं की नहीं, वो एक जमज़ादे की बेमिसाल मोहब्बत की कहानी है जो मेरे लिए इंसान बन गया, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को मुकम्मल महसूस कर सकूं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।